एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करੈ आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ ਜੀਓ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਪੀਜੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਭਾਗਾ
न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। मिल सतसंग बोली हर बाणी, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन पावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो। बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन ब्रह्म चोटां खावै, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मान
ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ, ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
जब निस बासुर कारा तुझे न व्यापी नानक मिटे नानक मिटे नानक मिटे नानक मिटे नानक मिटे अमृत वेला अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला ओ सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला 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 सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला 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 पर बातें शब्द ते आए शब्द ते आए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत
करे बैठा रो और जाग जाके संगते बिछुरा ताही के संग लाग कबीर सूता क्या करे जाग 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 रोए पे दुख जासा बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख जा का बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख कबीर सूता क्या करे उठ के न ठपे मुरा एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसा हो सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक छोटा सा पॉइंट याद आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए दास सिमरन के बीच में बोल रहा है। दास कुछ दिन पहले किसी मुसलमान स्कॉलर को सुन रहा था, जो उनमें बहुत ज्ञानी होते हैं ना, महान स्कॉलर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनसे सवाल पूछा गया, उनका इंटरव्यू चल रहा था कि 5 वक्त की नमाज होती है, मोहम्मद साहब का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अल्लाह का हुक्म है, मोहम्मद साहब जो बता के गए कि 5 वक्त की नमाज में ईशा की नमाज है, मगरिब की नमाज, ऐसे 5 नमाजें होती हैं। एक अमृत वेले की होती है जिसे कहते हैं फजर की नमाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या ऐसा हो सकता है कि हम शाम की नमाज थोड़ा लेट पढ़ लें? वैसे तो नमाज का वक्त जो होता है उस वक्त करना चाहिए, ये वो खुद कह रहा है इंटरव्यू लेने वाला। पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मोहम्मद साहब ने ऑप्शन दिया है कि जो 5 नमाजें हैं
हम अगर नहीं पढ़ पाते समय पे तो बाद में पढ़ लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा सवाल है। अगर हम नहीं कर पाते, हर कोई नहीं कर पाता इतना सख्त समय पे करना, तो उसकी कोई ऑप्शन है कि हम बाकी जो 4 नमाजें हैं, जो 5 नमाजें हम कभी भी कर सकें? तो वो कहते हैं, ऑप्शन दिए मोहम्मद साहब ने कि अगर लेट हो जाए तो ना पढ़ने से अच्छा है कि आप नहीं किए आपने नमाज अदा जो समय पर है, तो बाद में कर सकते हैं। पर एक नमाज की ऑप्शन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे बाकी 4 की ऑप्शन है, जो दिन की 4 नमाजें हैं, दोपहर की, शाम की, रात की, इन सब की ऑप्शन है। पर जो सुबह की फजर की नमाज है, इसकी कोई ऑप्शन नहीं है। मोहम्मद साहब कह के गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि एक समय ये हाथ से निकल गया समय, अमृत वेले जिसे कहते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसकी कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए कहते मैं जिन लोगों को जानता हूँ, वो मुसलमान स्कॉलर कहते मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सारी रात केवल इसलिए नहीं सोते कि फजर की नमाज मिस ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझे? अमृत वेले जैसा कोई समय नहीं। अगर हम सोचे कि इसकी भरपाई बाद में हो सकती है, तो नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी कर लो, हर चीज की समय की भरपाई है, अमृत वेले की भरपाई नहीं है। अगर ये छूट गया, वो छूट गया, किसी भी कीमत पे हाथ में नहीं आने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो डरना चाहिए, पाछा तरस कर डर होना चाहिए कि अमृत वेला ना छूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे प्रमाण देखे ना, कबीर जी क्या कह रहे, कबीर सोता क्या करे, बैठा रहो और बैठा रहे, जागता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जाके संगते बिछड़ा ताई के सलंग, जहाँ से बिछड़ा हुआ उसके साथ जुड़, नाम जप अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर सोता क्या करे, बैठ जाग रोए पह दुख, जाका बासा गोर में सोके सो सुख। जब तुझे पता कि अभी तूने मर जाना है, अब तूने जल जाना है, दफनाया जाना है तुझे, तो आराम से सो कैसे सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे चैन कैसे आ रहा है? भगत कबीर जी कह रहे हैं, जाका बासा गोर में, जिसे पता है कि अभी दफनाया जाना है, वो कैसे चैन की नींद सो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो समझो इस बात को, अमृत वेले के जैसी इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वाणी तो कहती है, हर धर्म ग्रंथ कहता है, अब मोहम्मद साहब ने भी कह दिया कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए सिफत सलाह अमृत वेला, सिफत सलाह अमृत वेला, सिफत सलाह अमृत वेला, 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 हो सिफत सलाह अमृत वेला, सिफत सलाह अमृत वेला, सिफत सलाह अमृत वेला, 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 अमृत
अमृत वेला। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस बस, धन गुरु नानक। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज गुरु नानक की अपार मेहर, गुरु रामदास जी का तरस, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तरस। ऐसा समझ लो गुरु रामदास जी आशीर्वाद देने किसी को भेजा है उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जो रह चुके हैं, बहुत साल सेवा निभाई है। अब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जत्थेदार तख्त श्री दमदमा साहिब, थोड़े दिन पहले घटना सुनी थी ना दमदमा साहिब, जहाँ बाबा दीप सिंह जी बैठे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप जो संचित किया था, उसकी सेवा वहाँ हुई थी। उस तख्त से ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार भी रह चुके, आप सब जानते हो। इतनी बड़ी महान शख्सियत गुरु रामदास जी ने तरस करके आशीर्वाद देने आपके बीच भेजा है। जो अभी आपने दर्शन किए जिनके, सारे उनके स्वागत के लिए एक जयकारा बुलाए। गुरु नानक की अपार मेहर है उन पर। दास को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं वो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दास बेनती करेगा महापुरुष ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को, जत्थेदार तख्त श्री दमदमा साहिब जी के आके कुछ समय संगत को गुरबाणी से जोड़े। जैसे ही उनका समय फिर वो उठेंगे, फिर दास फिर बैठ जाएगा, कीर्तन के आनंद लेंगे। पर आए हैं तो मेरा मन है कि कुछ समय ज़रूर वो संगत के दर्शन करें और संगत उनके दर्शन कर ले और उनके कीमती प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाइए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। रखो अपनी शरण प्रभ, मोहे कृपा तारे। सेवा कछु न जाना, नीच मूर्खारे। मान करो तुद उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे। जुग जुग अटल, लोक परलोक के राखे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी साध संगत जी, सबसे पहले फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो अमृत वेले हमें सत्संगत करने का शुभ समय प्राप्त हो रहा है, जी ऐसी नहीं हो रहा है, जी ईश्वर की वाहिगुरु जी की कृपा से हो रहा है। क्योंकि महाराज जी की वाणी हमें यही कहती है कि सत्संगत उसी को मिलती है जिसके भाग्य में लिखा होता है, नहीं तो नींद हमें भी आती है, हमें भी बहुत ज़रूरी काम है, पर हम
नींद और आलस का त्याग करके जहाँ महाराज की हजूरी में अमृत वेले नाम जपने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम पे उस वाहिगुरु जी की कृपा है। गुरबानी का फरमान है कि वड भागी हर संगत पावा है, भागहीन परम चोटा खावा है। जिसका मतलब है कि जिसके भाग बड़े होते हैं, उदय होते हैं, उसको सत्संगत की प्राप्ति होती है। और जो भाग्य से हीन होते हैं वो भ्रम के चक्कर में पड़े हुए चोटें सहन करते हैं। महाराज हमें ये भी बताते हैं कि बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। कि जब तक हमें सत्संगत नहीं मिलती, जब तक हम सत्संगत में बैठ के उस ईश्वर को, वाहिगुरु जी को याद नहीं करते, तब तक मन से मैल नहीं जाती है। और जब तक मन से मैल नहीं जाती है, गुरु जी और वाहिगुरु जी हमारे मन में नहीं आते हैं। हम किसी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, किसी बड़ी हस्ती को, तो जब उसने आना होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं कि हमारे घर में बहुत बड़ी हस्ती आ रही है, हमें अपना घर साफ रखना है, उसे बिठाना है, चद्दरें साफ होनी चाहिए, जहाँ उसने बैठना है गंदगी नहीं होनी चाहिए, मैल नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि वाहिगुरु जी हमारे मन में आए, हमारे दिल में आए, तो हमें अपने मन को भी साफ रखना है, हमारे दिल को भी साफ रखना है। और मन कैसे साफ होता है, दिल कैसे साफ होता है? सत्संगत के द्वारा। धर्म के क्षेत्र में बहुत काम किए जाते हैं, हम देखते हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मजहबों में धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत काम करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। एक बार किसी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, धर्म के क्षेत्र में बहुत लोग बहुत काम करते हैं, पर सबसे बढ़िया काम कौन सा है, सबसे उत्तम काम कौन सा है जो हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है? तो मालूम है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, वाणी में दर्ज है कि हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। सिर कर्मन कै कर्मा का मतलब होता है सबसे बड़ा काम, सबसे अति उत्तम काम। जैसे हम गुरु अमरदास जी की वाणी पढ़ती है ना, आनंद साहिब, उसमें हम पढ़ते हैं कि आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी, बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, बाणियां सिर बाणी, गुरु अमरदास जी, तैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कर्मन सिर कर्मा। कि भाई मालूम है धर्म के क्षेत्र में सबसे उत्तम काम, सबसे बड़ा काम जो हमें वाहिगुरु जी के नज़दीक ले जाता है, पास ले जाता है,
वो है सत्संगत में बैठ के भजन करना, कीर्तन करना। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। फिर महाराज जी एक बात और है, अगर सबसे बड़ा काम सत्संगत में बैठ के कीर्तन करना है, कीर्तन सुनना है, तो समस्त संसार ये काम क्यों नहीं करता? केवल कुछ लोग ही क्यों करते हैं? तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, इसलिए आगे की पंक्ति में कि हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा, कह नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। कहते भाई इसलिए सभी लोग ये काम नहीं करते, थोड़े लोग ही ये काम करते हैं सत्संगत में बैठने का, कीर्तन करने का, कीर्तन सुनने का, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा होता है, और जिसके भाग्य में नहीं लिखा होता वो नहीं कर पाता है। इसका क्या मतलब है मालूम है? इसका मतलब है कि हमारे भाग्य में लिखा है, तभी हम लोग अमृत वेले सत्संगत में बैठे हैं। गुरु महाराज जी ने लिखा है, हम पर विशेष कृपा है, तभी हम बैठे हैं सत्संगत में कीर्तन करने के लिए और कीर्तन सुनने के लिए। ये बात हमको जान लेनी चाहिए। जैसे रिंकू वीर जी ने बताया कि अमृत वेले की सत्संगत सबसे बड़ी महान है, और ये बात सत्य है। पंजाब में अभी गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है। 15 दिन 20 दिन गेहूं की बिजाई होगी, और अगर ये दिन बीत गए तो फिर अगर गेहूं बीजा जाएगा तो नहीं होगा। क्यों? फिर बीज बोया जाएगा तो क्यों नहीं उगेगा, क्यों पैदा नहीं होगा? क्योंकि उसके उगने का वक्त जो है वो बीत चुका होगा। इसको मालूम है गुरबानी में क्या कहा है? करुत्ता बीज। करुत्ता बीज वो बीज होता है जो समय पे ना बीजा गया हो, जो समय पे ना बीजा गया हो उसे बोलते हैं करुत्ता बीज। वाणी में उसको, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में उसको करुत्ता बीज बोला गया। आज जब सुबह इस स्थान पे गुरु महाराज जी का प्रकाश हुआ और हुक्मनामा लिया गया, तो मालूम है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का हुक्म आया। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज यहां से हमें क्या हुक्म दिया? उन्होंने भी यही कहा कि चेतना है तो चेत ले, निस दिन मैं प्राणी। कि हे प्राणी, तो उसको चेत का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब क्या होता है? चेत का मतलब होता है सिमरन करना, याद करना। सिमरन का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। संस्कृत में इसको बोलते हैं स्मरण करना, याद करना। कैसे याद करना? बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपने विदेश गए हुए पुत्र को याद करती है, बेटी को याद करती है, बेटे को याद करती है, वैसे ही उस वाहिगुरु जी को याद करना, गुरु जी को याद करना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं कि अभी वक्त है आपके पास, आप उस वाहिगुरु को याद करो। कब करोगे? गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भगत बीखन जी की वाणी दर्ज है। भगत बीखन जी तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दूध वानी। भाई कब याद करेगा उसको?
जब तुम्हारी आंखों में पानी गिरने लगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तब बोलेगा कि मैंने दर्शन करना है महाराज जी का। जब कानों ने सुनना बंद कर दिया, तब कहेगा कि मैंने कीर्तन सुनना है, मुझे लेके चलो कोई। जब तुम्हारी टांगे जवाब देगी, चलने से तुम सक्षम नहीं रहे, तब बोलोगे कि मैंने सत्संगत में जाना है, अपने पोते को पोती को कि मुझे लेके जाओ, बेटे को बेटी को मुझको लेके जाओ। कब? भगत भीखन जी कहते हैं, नैनो नीर बहे तन खीना, भय केस धुधवानी। जब तुम्हारे केश सफेद हो गए, मतलब जब तुम बूढ़े हो गए, कुछ करने के सक्षम ही न रहे, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी, तब क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। और आज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने भी हमें यही सिखाया है कि चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है। छिन छिन, थोड़ा थोड़ा समय करके आपकी जो उम्र है वो जा रही है बुढ़ापे की ओर, और एक दिन चले जाना है हमने। कैसे चले जाना है? कहते फूटे घट ज्यों पानी, जैसे मिट्टी का जो मटका होता है ना, फूट जाता है, वैसे फूट जाना है। इसलिए अभी सत्संगत करने का वक्त है, अभी धर्म कमाने का वक्त है। महाराज ये नहीं कहते हैं कि आप अपना कारोबार मत करो, अपने परिवार को मत संभालो। भाई अपना कारोबार भी करो, अपने परिवार को भी संभालो, अपने बच्चों को भी संभालो, लेकिन कुछ वक्त उस वाहिगुरु जी के लिए जरूर निकालो। और वो कौन सा वक्त है? वैसे तो सभी वक्त उनके हैं, पर अमृत वेला उनको याद करने के लिए सबसे बेस्ट वक्त है, सबसे अति उत्तम वक्त है। अमृत वेले कोई भी काम करो। बच्चा जो हमारा कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वो सारा दिन पढ़ाई करे तो वो उतना सक्षम नहीं हो पाएगा जितना वो अमृत वेले अगर उठ के वो पढ़ाई में अपना ध्यान जोड़ता है तो वो ज़्यादा याद कर पाता है। अमृत वेला है ही ऐसा। दिन में जितना काम हम 8 घंटे में करते हैं, जो अमृत वेले उस काम को करे तो हम उससे बहुत थोड़े वक्त में कर सकते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब महाराज ने अमृत वेले की हमें संभाल करना सिखाया। मैं एक गुरु नानक साहब की बात कह के आपको समाप्ति करूंगा। एक बार अपनी उदासी के दौरान गुरु नानक साहब मध्य भारत में एक जंगल से गुजर रहे थे। तो उस जंगल में एक ट्राइब था, कबीला था। वो ऐसा कबीला था कि उस कबीले में जो बाहर से कोई अगर आ जाता था तो उसको वो मार के भून के खा जाते थे। उसको बोलते थे नरभक्षी कबीला, जो आदमियों को भी खा जाता है। जब गुरु नानक साहब उस कबीले के लोगों के पास गए तो उनको मालूम पड़ा कि कोई बाहर से व्यक्ति आया है, तो चलो उसके मार के खाते हैं। तो जैसे वो अपने घरों में से निकले गुरु नानक साहब जी को मारने के लिए, किसी ने अपने हाथ में पत्थर उठाया, किसी ने भाला, किसी ने तलवार, किसी ने कुछ उठाया। और जब वो गुरु नानक साहब के पास पहुंचे तो वो मार नहीं पाए। उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनके हाथ वहीं के वहीं रुके रह गए। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी ने उनको समझाया कि भाई जो काम पशु करते हैं वही आप करते हैं। पशुओं में और आप में, जानवरों और आप में क्या अंतर है? जैसे बानी में आता है ना, करतूत पशु की मानस जात। तो वो समझने लगे। जन्म साखियों में लिखा है कि गुरु नानक देव जी महाराज उनके पास 1 महीना भर रहे।
और उन्होंने गुरु नानक साहब जी से खूब ज्ञान बटोरा, ज्ञानवान हुए। जब गुरु नानक साहब वहाँ से चलने लगे तो वो गुरु नानक साहब के रास्ते में लम्बे पड़ गए। कहने लगे हम आपको जाने नहीं देंगे। उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनके नौजवान कहने लगे हे गुरु नानक, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे पास रहो। गुरु नानक साहब कहने लगे कि हमें जाना तो है भाई, हमें जाने दो। कहने लगे महाराज आपने हमें जीवन दिया है, जीवन जीना सिखाया है, तो जिस गुरु ने हमको जीवन जीना सिखाया है, जीवन दिया है, हम उसको कैसे जाने दे सकते हैं। महाराज कहने लगे भी आपको भय किस बात का है। कहने लगे महाराज हमको भय इस बात का है कि अगर आप चले गए तो हम फिर वैसे ही बन जाएंगे जैसे पहले थे, हम अब वो नहीं बनना चाहते जो पहले थे। तो गुरु नानक साहब महाराज ने उनको एक जुक्ति बताई। कहने लगे अच्छा एक आप काम करो, हमने जो आपको शिक्षा दी है, जो आपको उपदेश दिए हैं, जो आपको शब्द सिखाए हैं, आप उनको लिख लो या याद कर लो। कहने महाराज जी इससे क्या होगा। कहते आगे बताते हैं। आप कहते एक जगह जो है वो मुकर्रर कर लो, पक्की कर लो। आपने क्या करना है, आपने अमृत वेले उस जगह पे इकट्ठे होना है। हो जाओगे। कहते हाँ जी हो जाएंगे। कहते फिर जो हमने आपको शिक्षा दी है, जो हमने आपको उपदेश दिया है, जो आपने लिखना है या याद करना है, आपने उसको बार बार उचारना है, पढ़ना है इकट्ठे होके। कहने महाराज ये काम भी कर लेंगे। एक तो अमृत वेले करना है, एक संध्या के समय करना है। अमृत वेले बड़ा जरूरी है। कहने महाराज ये तो काम कर लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, पर इससे होगा क्या। तो महाराज कहने लगे कि अगर आप अमृत वेले और संध्या के समय एक जगह इकट्ठे होके हमारे दिए हुए शिक्षा को, हमारे दिए हुए शब्द को आप बार बार गाओगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको ये भय है ना कि हम पहले जैसे नहीं बनेंगे। तो हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि आप तो क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी पहले जैसे नहीं बनेंगी, जो करती जाएंगी लगातार। मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको सत्संगत के साथ जोड़ दिया, सत्संगत बना दी उनकी, और सत्संगत के साथ उनको जोड़ दिया। और वैसा ही हुआ। वो फिर नरबख्शी नहीं हुए, वो इंसान हो गए। और ऐसे गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई भगीरथ जी को बोला था। भाई भगीरथ जी गुरु नानक साहब महाराज के पास सुल्तानपुर आए। ओ लोधी व्यापारी थे। कहने लगे महाराज मैं आपसे एक विनती करता हूं। कहते बताइए। कहने मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही रहूंगा अभी मैं। महाराज कहने लगे भाई आपका व्यापार है, आपका परिवार है। कहने लगे महाराज अब मैं परिवार में नहीं रहूंगा, मैं परिवार छोड़ आया हूं, मैं कारोबार छोड़ आया हूं, मैं अभी आपके साथ ही रहूंगा। महाराज कहने लगे नहीं, जो हमारे शिष्य हैं उनको परिवार और कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना कारोबार कीजिए। कहने लगे महाराज मैं आपके बिना रह नहीं पाता, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं व्यापार तो करने चला जाऊंगा, देश विदेश में जाता हूं सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए, लेकिन अब आपसे इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। महाराज कहने लगे तू चाहता क्या है भाई। कहने लगा महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप हर वक्त मेरे साथ रहो और मैं आपके हर वक्त साथ रहूं। तो गुरु नानक साहब महाराज भाई भगीरथ जी को कहने, भाई मनसुख था उसका नाम, उनका नाम, भाई मनसुख जी को कहने लगे कि भाई ऐसे करो, आप जो हमने शिक्षा दी है, जो हमने वाणी
उचारी है, आप उसको एक पोथी के रूप में लिख के अपने पास रख लो। और आपने करना क्या है, आपने अमृत वेले उठ के उस पोथी में से वाणी पढ़नी है और संध्या के समय भी वाणी पढ़नी है। जहाँ भी आप होगे, जहाज में होगे, पानी वाले जहाज चलते थे जिसमें वो व्यापार करता था, जहाज में होगे, जमीन में होगे, जहीं भी होगे आपने वो पोथी निकालनी है और आपने अमृत वेले जागना है, उठना है, वो पोथी निकालनी है और जो हमारी वाणी है, जो हमारे शब्द है, उसको पढ़ना है। तो महाराज उससे क्या होगा? कहते आप यही चाहते हैं ना कि गुरु नानक साहब मेरे साथ हो, मैं गुरु नानक साहब के साथ हूँ? कहते जी यही चाहता हूँ। तो कहते जब आप वाणी पढ़ेंगे अमृत वेले तो गुरु तुम्हारे साथ होगा और आप गुरु के साथ होंगे, गुरु आपसे दूर नहीं होंगे। तो ऐसे महाराज जी ने भाई मनसुख जी को बोला था। तो यही हमें गुरु नानक साहब महाराज की शिक्षा है। मैं अंत में आप सभी सत्संगियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप अमृत वेले अपनी निंद्रा को त्याग के इस सत्संग समागम में हाजिरियाँ भरते हैं और गुरु नानक से महाराज जी का हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उस महाराज जी का जिसने अंधकार को दूर किया अपने वक़्त में, आज भी जिनकी वाणी अंधकार को दूर करते हैं, बाहर के अंधकार को भी और मनों में पए हुए अंधकार को भी जिनकी वाणी दूर करती है। अब हम उस गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए हम ये सत्संग समागम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद गुरु महाराज जी का, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, गुरु नानक साहब जी का, उसके बाद सत्संगी जनों का, आपका सभी का धन्यवाद। और ख़ास तौर पे रिंकू वीर जी का भी धन्यवाद कि अमृत वेले आप सब संगत के दर्शन हमें करवाए हैं। क्योंकि जो इकट्ठी होती है ना सत्संगत भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, उनकी सेवा और उनका दर्शन भी बहुत अच्छे भाग्य वालों को मिलता है। तो मैं इसलिए रिंकू वीर जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर फतेह प्रवान कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की अपार मेहर। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी इतना प्यारा ज्ञान दिया है सारी संगत को। तरस किया गुरु नानक पातशाह ने उन्हें यहाँ भेजा, आप संगत को उनके दर्शन हुए, उन्होंने आप संगत के दर्शन किए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, शब्द ले लेते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक मिनट ले लीजिए, शब्द ले लीजिए। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाए। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाए। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा,
सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, सेवा सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाणी। शब्द के अर्थ लेके बैठे तो भी समय हो जाएगा, पर कर लेना है सेवा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने थोड़े दिन पहले पॉइंट डिस्कस किया था, सेवा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महापुरुषों के वचन है कि जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की ज़रूरत होती है, एक पंख से वो नहीं उड़ सकता। प्रभु को पाने के लिए हमें भी दो पंख चाहिए, एक सेवा, एक सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल सिमरन हो, सेवा ना हो तो भी प्राप्ति नहीं होगी। केवल सेवा हो, सिमरन ना हो तो भी प्राप्ति नहीं होगी। सेवा वो सेवा है जिससे एक बर्तन तैयार होता है जिसमें नाम रूपी अमृत ठहर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी को चलने के लिए दो किनारों की जरूरत होती है, प्रभु को पाने के लिए दो चीजों की जरूरत है।
पर सेवा को लेके हमारे में इतने मतभेद हैं कि सेवा होती क्या है, सेवा करते कैसे हैं, सेवा कहते किसे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। काम और सेवा में अंतर होता है। हम जो करते हैं 90% वो काम होता है, सेवा नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो गुरुद्वारे में आके क्यों ना करते हो। जिस सेवा में सिमरन शामिल नहीं, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वालों के वचन, जिस सेवा में सिमरन शामिल नहीं वो सेवा नहीं, काम है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जोड़े घर में सेवा कर रहा है और बातें कर रहा है तो वो काम कर रहा है, सेवा नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जोड़े घर में सेवा कर रहा है और साथ में सिमरन कर रहा है, नाम जप रहा है, तो वो सेवा कर रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं ना, सेवा करते बहुत लोग हैं, कमाते कोई विरले। विच दुनिया सेव कमाई है, ता दरगे पैसे न चाहिए। करने और कमाने में फर्क होता है। पूरा दिन एक आदमी दुकान पे बैठा रहे पर कमाए कुछ ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाना मेन है, सेवा कमानी आ जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बहुत सारे लोग सेवा करते दिखेंगे आपको, सैकड़ों। अब लंगर घर में जाओगे 200 लोग लंगर बना रहे हैं। दास होकर आया था, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में बनता है तो बहुत सारी सेवादार है, भीड़ लगी होती है, 25-30 पतीले रखे होते हैं। पर खुशी होती है जाके देख के कि अभी समझ गए हैं ये, क्योंकि दास बहुत बार चक्कर मारते हैं अचानक। अब समझ में आ गया इन्हें, गुरु मेहर करे, क्योंकि सिमरन कर रहे होते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा करके लोग नाम जप के बना रहे होते हैं। अब ये सेवा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नार। हाथों से सेवा करनी है, चित्त नाम में जोड़ना है, तब जाके सेवा होती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा के कई पहलू हैं, कई। इसकी कितनी डिटेल हम ले चुके हैं कई बार। आज फिर जो कुछ पहलू बाकी थे उस पर रोशनी डालनी थी गुरबानी के आधार पे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी घटनाएं हैं, पर 6 बजने वाली है, तो सारी संगत के चरणों में बेनती है। एक तो सिंह साहब भी आए हैं, वो भी प्रभात फेरी में दर्शन देंगे आप सबको, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, पर वो दर्शन देंगे सबको। तो बेनती है कि सब जरूर चले साथ में। तो ये प्रकरण कल ले लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अधूरा रह जाएगा। कोई भी बात शुरू की अधूरी रह जाएगी। प्रकरण कल ले लेते हैं और आनंद लेते हैं। गुरु मेहर करे, ये समा जो गुरु साहब जी ने बख्शा है, पीछे सर पे आशीष देने बैठे हुए पीछे साथ में, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे कोई पहुंचे हुए महापुरुष, महाज्ञानी, कोई विद्वान आकर जब साथ में बैठते हैं और आशीष देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरु आज बहुत प्रसन्न हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरे करे। आज के लिए दास माफी मांगता है क्योंकि समय नहीं है। शब्द ले लिया, यही शब्द कल लेके या नया शब्द लेके कथा ले लेंगे कोई, इसी को आगे बढ़ेंगे, समझेंगे सेवा होती क्या है और सेवा का फल क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है साकाम सेवा, एक होती है निष्काम सेवा। जिसने निष्काम सेवा कर ली, जिसे ज्ञान हो गया, वो सेवा के बाद केवल सेवा ही मांगता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए समाप्ति कर देते हैं। गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। गुरु की टहन, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाने, गुरु की टहन, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाने, गुरु की टहन, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाने। गुरु की सेवा,
की आज्ञा पाए, गुरु की पहल गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी, गुरु की आज्ञा पाए, गुरु की आज्ञा गुरु की आज्ञा पाए, गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कावो, आप हाथ दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ, जो पर जाओ सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिए, चुन सत्र हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे उभरिए, मरण काल का त्रास नुवरिए, हो जो सदा हमारे पछा, श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा, राख लियो मोय राखण हारे, साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, हो पुरी ततर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रगासा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जो की शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सगल प्रजा जिने आप सवारे, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहब्बत कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चेटी ते कुंजर अस्तोला, सब पर कृपा दृष्ट कर भोला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब उद करक करा कर तारा, प्रजा तर्क तब दे अपारा, जब वह करक करत हूँ कब हो, मैं मिलत दे तर सब, जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप आपने मोजे उतार, तुम सब ही ते रहत निरालम, भेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव, तांका मूढ़ उचारत भेदा, को पेव न पापन भेदा, तांको कर पान अनुमान, महामूढ़ कछ भेद न जान, महान देव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुध है जेती, तो पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, कै कुछ सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयोरा वकई कोपा, अंडज जेरज से तज कीने, कुछ खान बहो रच देने, कहूँ कुल राजा हव बैठा, समट प्यो संतरे बैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप से अम्ब, अब रक्षा मेरी तुम करो, बार असिक संगरो, दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सगल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी पर, के दुष्ट दुखत हव मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे,
जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टि जाय निहारो आके ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाए खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जित कर तारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया जिनको से नाम रखे लागे करे नानक दस को आदित करे नरवाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत सागर पाए सबसे पूरे गुटे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंद नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता माता तक मात जिसरात गाई गाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपने जिन नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे चरणों में मैंने जब से गुरु जी अपना शीस झुकाया है, बिन मांगे भर दी झोली मेरी, तुझसे ही सब कुछ पाया है। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। शुक्राना दिन रैन गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना दिन रैन गुरु जी तेरा शुक्राना। हर पल तेरी याद में गुजरे, श्वास श्वास तेरा गुण गाना। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। दरबार बुलाया चरणों से लगाया, शुक्राना मुझे अपना बनाया, कभी ना ठुकराया। दरबार बुलाया चरणों से लगाया, मुझे अपना बनाया, कभी ना ठुकराया। मेरे मन मंदिर में गुरु जी तेरी सुंदर छवि समाई है। मेरा हाथ पकड़ के गुरु जी तुमने सदा सच की राह दिखाई है। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। विश्वास जगाया मैंने तुझको है पाया, शुक्राना सत्संग में बुलाया, मुझे खुद से मिलाया। विश्वास जगाया मैंने तुझको है पाया, सत्संग में बुलाया, मुझे खुद से मिलाया। शुक्राना दिन रैन गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना दिन रैन गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना दिन रैन गुरु जी तेरा शुक्राना,
शुक्राना दिन रैन गुरु जी तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।